Today, we are here to attend a lecture by Mr. Vivek Agnihotri on Rise of Intellectual Terrorism, the New Plague of India and Citizens' Roadmap for the Right Response, organized jointly by Manthan and Vithoba Industries Private Limited. A very warm welcome, Vivek ji. Once again, welcome everybody. When I first heard the topic of this particular talk, which is the rise of intellectual terrorism, my curiosity led me to Google the term terrorism first. When you Google the term terrorism, the definition which the Google shows is the unlawful use of violence and intimidation, especially against civilian in the pursuit of political aims. And I was very eager to hear what intellectual terrorism would be like, because we see terrorism in our everyday life. Today, we have with us the celebrated award-winning filmmaker, producer, a public speaker, a TEDx speaker, a columnist, a youth activist, and an author of upcoming book Urban Naxalism, Mr. Vivek Agnihotri with us. So without taking much time, first let us welcome our today's guest. So I request Mr. Sudarshan Shende, MD of Vithoba Industries on stage, to please welcome Mr. Vivek Agnihotri with a floral bouquet and a tulsi sapling. Next, I request Ms. Premlata Daga to please welcome MD Sudarshan Shende, sir. Thank you, ma'am. Thank you, sir. Taking the introduction part a bit further, I'll now tell you about the Manthan. So we all know Amrit Manthan as a mythological phenomena which led to the origin of nectar and gems through the churning as an oceanic motion. Similarly, we can come up with Atma Manthan and Hriday Manthan. Atma Manthan is self-analysis and Hriday Manthan is giving a deep thought to the subject of prominence, and hence will include or will consider both the terms under brainstorming. So Manthan is a group of young organizers, young people who have organized today's events and have come up together with contemplation of idea of Bharat. Today, Manthan and Vithoba have brought under one roof people of diverse fields to interact and think over the burning issues of our country today. Today, we have with us on stage MD Sudarshan Shende, a dynamic industrialist who is successfully heading Vithoba Industries. I request him to please guide us on the occasion. मंच पर उपस्थित आज के हमारे चीफ गेस्ट मिस्टर विवेक जी अग्निहोत्री और उन्हें सुनने के लिए आए हुए आप तमाम श्रोतागण, इन सबका मैं विठोबा इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड और मंथन की ओर से वेलकम करता हूं। और आप लोगों ने जिस संख्या में यहाँ पर आके इस विषय का मर्म समझा है, उसके लिए भी मैं समझ रहा हूँ कि कितने एंग्शियस आप इस चीज़ को सुनने के लिए हैं। बीइंग अ विठोबा, हम लोग हर साल कुछ ऐसे इवेंट्स करते हैं जो एक समाज प्रेरित हो, और हमें लगता है ऐसा कि बीइंग अ बिजनेसमैन, बीइंग अ बिजनेस एक ग्रुप, हमारी कुछ
जिम्मेदारियां हैं समाज के प्रति, लोगों के प्रति, सामाजिक एक उत्तरदायित्व जो है हमारा लोगों के प्रति, वो भी हम कुछ इस तरह से निभाना चाहते कि जैसा आप जानते हैं कि विठोबा का बेसिक जो वर्क है वो है दांतों से या ओरल केयर से संबंधित बैक्टीरिया को हटाना। तो दिमाग में जो कुछ ऐसे बैक्टीरिया लगे होते हैं उनको भी कुछ ऐसे प्रोमिनेंट स्पीकर्स के साथ में हम लोग यदि शेयर करते हैं तो वो भी मेरे ख्याल से इमीडिएट भाग जाते हैं। तो इसी तर्ज पर आज का एक कार्यक्रम आइडिया ऑफ भारत हमने डिज़ाइन किया है। मंथन और विठोबा की ये एक कोशिश है कि ये आपको थोड़ा सा सचेत करेगा, आपको अलर्ट करेगा और उसके साथ साथ आपको कीनली उस विषय पर ले जाएगा जिसकी आज समाज में हमें ज़रूरत है। आप लोगों को जानकर काफ़ी खुशी होगी कि प्रोमिनेंट director from Bollywood, we have made so many films, touching films. मिस्टर विवेक जी आज हमारे साथ में है और काफ़ी अच्छा बोलते हैं, वो तो अभी आपको दिखेगा ही, और काफ़ी महत्वपूर्ण उनका विषय है। उस विषय में आप और विवेक जी ये साथ में रहे, इसके लिए विठोबा का एक थोड़ा सा प्रयत्न हमें मिल पाया, हम लोग कर पाए, इसके लिए मैं अपने आप को बहुत ग्रेस समझता हूँ। ज़्यादा समय आपके और सर के बीच में न लेते हुए मैं हैंड ओवर करता हूँ टू मिस्टर विवेक अग्निहोत्री। थैंक यू। So before moving towards Vivek ji's much awaited speech, I'll first give a short introduction. I know that this is not very necessary, but still if you have seen Buddha in a traffic jam, there are certain sentences that immediately grab your attention. A culture is made or destroyed by its articulate voices. It is the first sentence I came across when I was watching the movie. Corruption is much needed grease for squeaking tires of rigid administration. It was the second. And the third was, where is the real war and who is the real enemy? And these three sentences start your thought process, they start your thinking process, and you just need to know the answers to them. So I am very thankful on behalf of Nagpur, its citizen, that you have come here to guide us on the topic. Speaking about Vivek ji, he is a loving father, a very loving husband, and you have seen him on so many stages as a TEDx speaker, as a Bollywood director, writer, speaker, screenwriter, everything. And now, without taking much time, I request Mr. Vivek ji to please guide us on the topic. No. I would love to stand. Thank you very much for overwhelming introduction. आपका नाम अंकिता जी, आई एम ओवरवेल्म्ड विद योर इंट्रोडक्शन। उस फिल्म में एक और भी डायलॉग था अंकिता जी, उस फिल्म में एक और भी डायलॉग था। अनुपम खेर कहते हैं कि अगर भारत में कोई इंसान करप्ट नहीं है तो वो एक ऐसा आदमी जिसको मौका ही नहीं मिला। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हिंदी में बोलूं चलेगा? आइडिया ऑफ भारत की बात हिंदी में, मराठी में, गुजराती में, अपनी भाषा में हो तो अच्छा लगता है। नागपुर आके मुझे हमेशा बहुत आनंद आता है। शायद आप लोगों को पता भी नहीं होगा, मेरे माता और पिता दोनों फ्रीडम फाइटर्स थे और विदर्भ में अकोला में उन्होंने अपना करियर शुरू किया था और नागपुर में काफ़ी ज़िंदगी बिताई थी और यहीं जेल गए थे वो लोग यहीं से। मैं नागपुर के बारे में सुनता रहा था बचपन से, मुझे रहने का सौभाग्य कभी नहीं मिला था, लेकिन शायद मैं फर्स्ट ईयर में था। मेरी ज़िंदगी की जो पहली स्पीच थी वो यहीं पास में वर्धा में विनोबा भावे का जो आश्रम है वहाँ पे मैंने दी थी। और जवानी में जो पहला शहर मैंने भोपाल के अलावा देखा था वो था नागपुर, और मैं यहाँ से बहुत सारे संतरे खरीद के अपनी माँ के लिए ले गया था। इसलिए मेरा बड़ा यहाँ से एक अलग तरह का रिश्ता है। मैं आता रहता हूँ, तो आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। आप बोल रही थी मैं वक्ता हूँ या ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं सिर्फ जो एक अनुभव जीवन का है वो लोगों से शेयर करता हूँ।
और उसके पीछे कारण यह है कि जब मैं पढ़ रहा था स्कूल में, कॉलेज में, और जो एक 17, 18, 19, 20 साल के लड़के की मंशा होती है, माई डैडी ग्रेटेस्ट। आपने देखा होगा बच्चों को हमेशा लगता है मेरी माँ सबसे अच्छी होनी चाहिए, मेरे पिता सबसे अच्छे होने चाहिए। और कल को अगर आपके माँ या बाप पे कोई लांछन लगे या कोई उनके बारे में बुरी बात करे, तो या तो आप लड़ाई लड़ने लगेंगे, गाली गलौज करेंगे। लेकिन जब आपको अक्ल आती है और आपको लगता है नहीं, इस बात में कोई तर्क है, ये बात सही भी है, तब जो दिल टूटता है, तब जो निराशा होती है, वो निराशा शायद तभी होती है जब एक मां का बेटा नालायक निकल जाए, फिर भी मां उसे प्यार करती रहती है। लेकिन एक बेटे के लिए अपनी मां के बारे में कुछ गलत सुनना मेरे ख्याल से जीवन का सबसे दुखदाई और कष्ट भरा क्षण होता है। मुझे भारत से बहुत प्यार रहा, हम अभी भी है और हमेशा से था, और बहुत ज्यादा। और मुझे हमेशा ऐसा लगता रहा, जो हमसे वायदे किए जाते थे, हमेशा ऐसा लगता रहा कि सन 1990 में भारत जो है वो एक बहुत सशक्त राष्ट्र बन जाएगा। फिर वो बोला गया सन 2000 में ऐसा हो जाएगा। फिर धीरे वो तारीख सन 2010 हो गई, फिर 2020 हो गई। अब मेरे बच्चे जब बड़े हो रहे हैं, उन्हें लगता है शायद 2030 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ जाएगी, हम लोग एक सुपर पावर बन जाएंगे। ऐसा नहीं कि हम उस डायरेक्शन में हम नहीं जा रहे, डेफिनेटली जा रहे। तो जब मैं यहां पढ़ता था, जब मैं यहां से अमेरिका पढ़ाई करने गया, तब मुझे समझ में आया कि जिस दृष्टि से हमको अपना देश दिखाया जा रहा था, उस दृष्टि से बाकी जो देश हैं, बाकी जो विश्व है, उस दृष्टि से हमें देख नहीं रहा था। वो हर चीज जिस पे हम गर्व करते थे, अपनी संस्कृति, अपना इतिहास, हमारा जो एक फैमिली सिस्टम है, हमारा जो एक सोशल स्ट्रक्चर है, जिस पे हमें आज मैं पूरी दुनिया में, मैं 10-15 कंट्रियों को छोड़ के सब जगह घूमा हूं, मैं आपको बता रहा हूं हमारा जो सोशल स्ट्रक्चर है, परहैप्स इट्स द बेस्ट इन द वर्ल्ड। और मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मैं भारतीय हूं। तो मैंने ये देखा कि सारी दुनिया जब एक आजाद विचारों की, जहां अपने यूथ को, अपने ट्रेडिशंस को, अपनी जो स्ट्रेंथ्स हैं उनको प्रबल करने में लगी थी, उसी वक्त हम लोग अपने हर इंस्टीट्यूशन को, अपनी हर संस्था को कहीं ना कहीं एक ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर तरीके से तोड़ने में लगे थे। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको 3-4 छोटी बातें बताऊंगा। फॉर एग्जाम्पल, इसमें तो कोई तर्क नहीं है कि हम दुनिया के सबसे पुराने, सबसे मैच्योर सिविलाइजेशंस में से एक है। अगर ये भी मान लिया जाए सबसे प्राचीन नहीं है, सबसे प्राचीन में से एक है। लेकिन एक लड़का जब बड़ा हो रहा है, उसको उसी बात के लिए अगर अपने ही देश में अपमान सहन करना पड़े, अगर वो अपनी प्राचीनता की, अपने कल्चर, सिविलाइजेशन की मैच्योरिटी के बारे में बात करता है, और उसी के लिए अगर उसको शर्म से सर नीचा करना पड़े, इसका मतलब उस देश के दुर्भाग्य के लिए बहुत दुर्भाग्य की बात है। अपनी भाषा पे कुछ दिन पहले एनडीटीवी में एक प्रोग्राम आ रहा था, जिसमें प्रणय रॉय भारत के 4 जो सबसे बड़े स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर्स हैं, ओला के, पेटीएम के, ऐसे 3-4 लोगों का इंटरव्यू कर रहे थे। उनने सबसे एक सवाल पूछा कि आपकी ग्रोथ में सबसे बड़ी बाधा क्या थी? What was the biggest hurdle in your growth story? आप आश्चर्य करेंगे, पेटीएम के जो विजय शेखर जी हैं, शर्मा, उनका जवाब क्या था? और जो उनका जवाब था, वो हर यंग लड़के लड़की का जवाब होता है। उन्होंने कहा मेरी ग्रोथ में सबसे बड़ी बाधा थी कि मुझे इंग्लिश बोलनी नहीं आती थी। मैं जब भोपाल से पढ़ के दिल्ली पहुंचा, मुझे बिल्कुल इंग्लिश बोलनी नहीं आती थी। मैं समझता था, लिख सकता था, पर बोलनी नहीं आती थी। मैं जीन्स नहीं पहनता था, मेरे पास वॉकमैन नहीं था, उस जमाने में बड़ा प्रचलित था। मैं एक टीचर का बेटा था। दिल्ली में टीचर के बेटे की कोई औकात नहीं होती, वो भी संस्कृत के प्रोफेसर का बेटा।
तो जब मैं दिल्ली पहुंचा, दैट वॉज अ कल्चर शॉक। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं विदेश में आ गया हूं, एक अलग देश और ये एक अलग देश। एक ही इंडिया में आप दो देश बन रहे थे। और तब मुझे समझ में आया कहीं पे डेलिबरेटली एक लाइन ड्रॉ कर दी गई है, एक इंडिया को भारत से जुदा कर दिया गया। आपने अगर मुल्ला नसरुद्दीन का नाम सुना हो, मुल्ला नसरुद्दीन एक टर्की के बहुत फिलोसोफर हुए हैं जो खुद पे मजाक करते थे, खुद पे जोक्स बनाते थे और जीवन की बड़ी कठिन कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस को पेश करते थे। बड़ी उनकी छोटी सी कहानी है। मुल्ला नसरुद्दीन एक दिन रात को अंधेरे में खड़े हुए को ढूंढ रहे थे। काफ़ी पॉपुलर आदमी थे, तो धीरे धीरे गांव के लोग आए, भीड़ लगी, कहले क्या ढूंढ रहे हैं? मुल्ला ने बोला साहब मेरे घर की चाबी खो गई है, वो ढूंढ रहा हूँ। तो पूरा गांव इकट्ठा हो गया, पूरी रात पूरा गांव जो है उस चाबी को ढूंढता रहा। सुबह हुई तो मुल्ला गए पीछे और उन्होंने कहा भाई चाबी अब दिखनी नहीं, धूप भी आ गई है, चाबी है कहाँ? कहते हैं एक्चुअली चाबी पीछे गिरी थी, पर चूंकि यहाँ पे लाइट थी इसलिए यहाँ ढूंढ रहा था। एग्जैक्टली अगर इसकी आप तुलना करें हमारे देश में आज़ादी के बाद क्या हुआ, हमको एक आइडिया ऑफ इंडिया की कल्पना करा दी गई और पूरा देश के जो चिंतक थे, जो इंटेलेक्चुअल्स थे, वो उस आइडिया ऑफ इंडिया को ढूंढने लगे, लेकिन जबकि भारत अंधेरे में पड़ा था। और जो सबसे बड़ा जो पाप, द बिगेस्ट कार्डिनल सिन our leaders and intellectuals from 1947 until late 2000 जो किया गया है वो ये है कि हमने जो भी व्यक्ति भारत और भारतीयता पे विश्वास करता है उसके अंदर एक हीन भावना भर दी गई। हमने वो हर व्यक्ति जो एक एलियन फॉरेन थिंकिंग को इस देश में लाता है उसको सेलिब्रेट किया, और वो जो देश की नेटिव इंटेलिजेंस और नेटिव विजडम की बात करता है उसको हमने दबाया गया। वरना क्या कारण है जिस देश ने कृष्ण, चाणक्य, बुद्ध, गांधी, इवन नेहरू, बाबा साहब अंबेडकर, मैं वहीं से आ रहा हूं, इतने महान, इतने बड़े, और तमाम बहुत है, एक दो नहीं है, इतने बड़े जिनको ग्लोबली, विवेकानंद, जिनको ग्लोबली, इंटरनेशनली एक राजनीतिक चिंतक के रूप में टॉप लीडर्स में माना जाता है, जिस देश ने 4 धर्मों का इजाद किया हो। मुझे ये बताइए वहां पे माओ और लेनिन क्या कर रहे हैं? कौन सा ऐसा देश है विश्व में जहां पे वहां की जो नेटिव विजडम है उसको छोड़ के किसी और देश की विजडम को लाके हमको एक इंटेलेक्चुअली कॉलोनाइज किया जाता है? वो हर व्यक्ति, आप, मैं इतना यूनिवर्सिटीज में घूमता हूं, किसी भी लड़के लड़की से पूछ लीजिए, अगर तुम कहो मैं मार्क्स पढ़ रहा हूं तो तुम्हारा क्या स्टेटस होता है, और तुम कहो कि मैं विवेकानंद पढ़ रहा हूं तो तुम्हारा क्या स्टेटस होता है? आप में से कई लोग इस बात के अनुभवी होंगे। तो सबसे पहला जो हमने आइडिया ऑफ भारत को कहाँ डिस्ट्रॉय किया, हमने जो बाहर की जो, देखिए आज खाने पीने के मामले में पूरा विश्व एक कॉन्सेंसस सा बनाता जा रहा है कि आपके शरीर के लिए वही खाना सबसे अच्छा होता है जो आपके इर्द गिर्द पैदा होता है। आइडियोलॉजी भी वही करेक्ट होती है जो आपके इर्द गिर्द पैदा होती है, क्योंकि उसमें हजारों साल का इंटेलेक्चुअल संघर्ष होता है। एक संघर्ष के बाद, एक मंथन के बाद एक विचारधारा धीरे धीरे पनपती है। उस विचारधारा को क्वेश्चन करना और निरंतर आपको यह बताते रहना कि जो विचारधारा आप मानते हैं वो गलत है और विचारधारा जो बाहर से आ रही है वो सही है, और इस तरह से धीरे धीरे लोगों को ब्रेन वॉश करते हुए एक नया इंडिया खड़ा कर देना और एक ही देश को डिवाइड कर देना। आई थिंक ये एक बहुत बड़ा पाप, बहुत बड़ी साजिश हमारे साथ की गई। दूसरी बात, आज पूरे विश्व में जहां भी एक हिंदुस्तान के
यंग मिडिल क्लास स्मॉल टाउन, आप देखिए ज़्यादातर लोग जो बाहर हैं, जिनको कहते हैं हिंदुस्तानी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत मेहनती हैं, बहुत ईमानदार हैं, 99% वो लोग आप देखिएगा वो उस छोटे शहर के नॉन इंग्लिश स्पीकिंग लड़के लड़कियां हैं, जिनके परिवार में लोगों ने, माओ ने अपनी साड़ियाँ नहीं खरीदी हैं, जहाँ पिता लोगों ने चार पैसे बचा बचा के उनके एजुकेशन पे खर्च किया। आज जब वो पूरे विश्व में जाते हैं तो जो वैल्यू सिस्टम प्रेजेंट करते हैं, जिस वैल्यू सिस्टम को यहां से लेके जाते हैं, वो इतना अद्भुत वैल्यू सिस्टम है। वो टॉलरेंस का वैल्यू सिस्टम नहीं है, वो टॉलरेंस और इंटॉलरेंस से बहुत आगे है। क्योंकि हमारी सोसाइटी जिसको कहते हैं आइडिया ऑफ भारत, वो टॉलरेंस पे बेस्ड है ही नहीं। टॉलरेंस तो आइडिया ऑफ इंडिया से आया है। हमारी सोसाइटी है एक्सेप्टेंस की। जब आपका पड़ोसी होता है आप उसको टॉलरेट नहीं करते, आप उसको एक्सेप्ट करते हैं, इसीलिए आपके घर के बच्चे उसको चाची, मौसी, नानी, दादी बोलने लगते हैं। आइडिया ऑफ इंडिया में अंकल आंटी बोला जाता होगा, लेकिन आज भी अगर आप एक छोटे शहर में जाएं तो वहां पे रिश्ते हमेशा पारिवारिक बनते हैं। और ये जो ताकत है लोगों के साथ एक परिवार क्रिएट करने की, मैं भी यहाँ उतरता हूँ, कहता भैया कैसे हैं, भाई साहब कैसे हैं, दीदी आप कैसी हैं, चाचा जी, मौसा जी, ये जो एक परिवार क्रिएट करने का जो हमारा इनहेरेंट क्वालिटी है, ये इतनी बड़ी ताकत है, इतनी बड़ी ताकत है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। पैसा आता है और जाता है, पैसा आने से सुख भी नहीं आता। विश्व में जितने लोग मरते हैं, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में 70 साल रिसर्च चला, जब भी कोई मरता था उससे पूछते थे कि भाई तुम्हारी आखिरी क्या तुम्हारी इच्छा रह गई। एक ही चीज लोग बोलते हैं पूरे वर्ल्ड में, काश मैंने अपने परिवार और दोस्तों के साथ ज्यादा वक्त बिताया होता। तो ये जो एक इंसान को क्रिएट करने की, देखिए मैं थोड़ा अलग लेवल पे बात कर रहा हूं, पर जो ये इंसान एक मैं भी अमेरिका में था, मैंने एक लेक्चर टूर में गूगल और फेसबुक में टाउन हॉल में गया था, वहां सिर्फ हिंदुस्तानी लोग भरे हुए थे। मैंने कहा भैया कोई गोरे लोग काम नहीं करते हैं क्या? पर व्हेन आई वाज टॉकिंग टू दोज अमेरिकन्स, ओनली वन थिंग दे हैड टू सी, दैट वी हैव नेवर सीन young boys and girls with such wonderful human qualities. कौन सिखाता है उन्हें ये सहनशीलता, लोगों को एक्सेप्ट करना। दो बबल्स होते हैं, जब वो मिलते हैं आपस में तो एक बड़ा बबल बन जाता है। ये जो क्वालिटी है, आप लोग भी ट्रैवल करते होंगे, विश्व में कोई एक ऐसी कंट्री बता दीजिए आप जहां पे ऐसा हो, जहां आपके दरवाजे हमेशा अतिथि के लिए खुले हों। इसको हमने कभी भी पब्लिक के सामने, यंग जनरेशन के सामने आने ही नहीं दिया कि हमारी इनहेरेंट कितनी बड़ी ताकत है। वरना आप बताइए, इतना संघर्ष इस देश के अंदर है, गर्मी, गंदगी, ट्रैफिक, गरीबी, इतने संघर्ष के बावजूद लोग कैसे हंसते रहते हैं। इस ताकत को डेलिबरेटली, वक्त ज्यादा हो तो मैं आपको डिटेल में भी बता सकता हूं, इसको डेलिबरेटली डिस्ट्रॉय किया गया। और कैसे किया गया? लोगों को आपस में लड़वा के। ये जो डिवीजन, क्योंकि इंडिया की सबसे बड़ी ताकत थी यूनाइटेड परिवार, जॉइंट फैमिली। घर में लड़ लेंगे, बाहर वाला कुछ बोले, मोहल्ले का लड़का है कहता मेरे मोहल्ले की लड़की को किसी ने छोड़ा हाथ पांव तोड़ देंगे। मेरे वक्त में तो ऐसे ही होता था, भाई आज तो नहीं पता मेरे को, पर हम जब कॉलेज में थे, हमारे मोहल्ले की किसी लड़की को कोई छेड़ दे तो हम कहते थे हमारी बहन, हम जाके उसके हाथ पांव तोड़। लेकिन स्लोली हमने मैन वर्सेस वुमेन, एक फेक कॉन्सेप्ट ऑफ फेमिनिज्म हम लेके आए बाहर से, जिसकी आवश्यकता हमको नहीं थी। हमने कास्ट लेवल पे, हमने रीजन के लेवल पे, हमने ज्योग्राफी के लेवल पे, हमने फाइनेंशियल स्ट्रेटा के लेवल पे, हर लेवल पे लोगों को धीरे धीरे डिवीजन उनके बीच में क्रिएट करके फॉल्स फेक कॉन्फ्लिक्ट और क्योस क्रिएट करने की कोशिश की। मैं किसी व्यक्ति और पार्टी विशेष का नाम नहीं ले रहा हूं, पर ऐसा करते करते हमने हमारे जो यंग जनरेशन थी उसके अंदर एक हीन भावना क्रिएट कर दी
हमको ये लगने लगा कि अगर हमको प्रोग्रेस करना है, अगर साइंटिफिक प्रोग्रेस करना है, अगर हमको इनोवेट करना है, तो उसके लिए हमें देश छोड़ के जाना पड़ेगा। तो जब आपके पास हीरा हो और आप हीरे की तलाश में कहीं और जाए, मुल्ला नसरुद्दीन की जो मैंने आपको कहानी सुनाई, आपकी चाबी कहीं और पड़ी हुई थी, आप लोगों से कह रहे थे ढूंढो कहीं और तभी हमारा जो आइडिया ऑफ भारत था धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होता रहा। कितने आश्चर्य की बात है कि आज की तारीख में आप किसी से पूछिए, 4 हिंदी, मराठी, गुजराती, बंगाली के कॉन्टेम्प्रेरी कवियों के नाम बता दें, 4 बड़े चिंतकों के नाम बता दें। आपके भी बच्चे अच्छे होंगे, फैमिली होगी, पूछिएगा कभी उनसे आप। मैं एक फिल्म बना रहा हूँ अभी, श्री लाल बहादुर शास्त्री की जो डेथ हुई थी उस पर, उसका नाम है द ताशकंद फाइल्स। पिछले 2-3 साल से हम काम कर रहे हैं और उसकी जो उसमें नसीरुद्दीन शाह है, मिठुन चक्रवर्ती, कई लोग हैं, पर जो लड़की एक काफ़ी प्रोमिनेंट रोल कर रही है और नेशनल अवार्ड विनिंग एक्ट्रेस है, बहुत अच्छी एक्ट्रेस है और बहुत इंटेलिजेंट लड़की है और बहुत अच्छे संस्कारों की लड़की है। जब वो शूटिंग शुरू हो गई तो उसमें एक सीन था जिसमें था कि 2 अक्टूबर को की बात आती है, तो उसने मुझसे बोला क्या लाल बहादुर शास्त्री भी 2 अक्टूबर को पैदा हुए थे? और आप यकीन नहीं करेंगे, मेरा जितने लोगों से वास्ता पड़ा है, ऑलमोस्ट नोबडी नोज कि लाल बहादुर शास्त्री अक्टूबर को पैदा हुए थे। शहर के बच्चों को तो ये पता ही नहीं कि वो कभी प्राइम मिनिस्टर भी थे। और आप बहुत शर्म से आपका सर झुक जाएगा। कई लड़के लड़कियों ने मुझसे ये भी बोला, नहीं नहीं ये कैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर हो सकते हैं, मतलब ऐसा दिखने वाला आदमी कैसे बन सकता है? क्यों ऐसा? क्यों नहीं हमने सेलिब्रेट किया अपने देश की जो इनहेरेंट ताकतें हैं उनको? क्यों नहीं हम सेलिब्रेट करते हैं आज उन ताकतों को? और क्या कारण है कि आज चाहे बच्चे का जनेऊ हो, चाहे उसका मुंडन हो, चाहे उसका जन्मदिन हो, कोई जीता हो, कोई त्यौहार हो, दुर्गा उत्सव हो, गणेश उत्सव हो, कुछ भी हो, सिर्फ बॉलीवुड के गाने बजते हैं, तो हमारा अपना म्यूजिक, हमारे अपने संस्कार सब कुछ खत्म हो गया। ऐसा नहीं है कि आप ऐसा चाहते थे। क्या कारण है कि पिछले 2-3 साल से सडनली हम लोग आइडिया ऑफ भारत की बात करने लगे? क्या कारण है इस बात का? क्योंकि कोई भी राष्ट्र चलता है लीडरशिप से, लीडरशिप ऑफ इंटेलेक्चुअल्स, लीडरशिप ऑफ साइंटिस्ट्स। हम किन लोगों को सेलिब्रेट करते हैं और सोचिए किन लोगों को सेलिब्रेट करना चाहिए। हम पूरे मेरे जीते जी हम लोगों ने सिर्फ लेफ्टिस्ट थिंकर्स को ही सेलिब्रेट किया है। हमने जो हमारे नेटिव थिंकर्स हैं, कौन जानता है विनोबा भावे को आज की तारीख में? कौन जानता है? क्या आप जानते हैं कि भूदान आंदोलन जो था, देखिए 2 आंदोलन एक ही वक्त में चालू हुए। बड़ी देखिए विडंबना देखिए इस देश की, 2 आंदोलन एक ही वक्त में चालू हुए। कई जमींदार लोग जो थे, जो प्राइमरीली आज़ादी के बाद कांग्रेस पार्टी के मेंबर्स बन के लीडर्स बन गए, ये जमींदार लोग जो है गरीब किसानों को लैंड, क्योंकि मैं खुद मेरे दादा, मेरे ग्रैंडफादर एक लैंडलेस लेबरर थे यूपी में, इसलिए मैं जानता हूँ इस बात को। तो उन लोगों को शोषित किया करते थे, जो आप फिल्मों में भी देखा करते होंगे। जमींदार का बेटा आता है घोड़े पे और लड़कियों को उठा के ले जाता है और लोगों को कोड़े मारता है। वो एक फिल्मीकरण था, पर उसे शोषित करते थे। एक ही वक्त में 2 आंदोलन चालू हुए जमींदारी के खिलाफ, जिसका आइडिया ये था कि भाई किसान का जो जमीन है वो जमीन वापस किसान को मिलनी चाहिए। 2 तरीके उसके अपनाए गए। एक सुबह को एक मरियल सा आदमी नंगे पांव एक छोटी सी धोती पहना हुआ आंध्र प्रदेश से महाराष्ट्र तक चलने लगा और वो जा के जमींदारों से कहता था, मैं आपसे हाथ जोड़ता हूँ, आपको समझाता हूँ कि भैया इन लोगों की ज़मीन है जो आपने अनैतिक तरीके से कब्जा कर रखा है, इनको वापस कर दीजिए। एग्जैक्ट फिगर नहीं है। उस व्यक्ति का नाम था विनोबा भावे, जिसको भूदान आंदोलन बोला गया। और लाखों स्क्वायर हेक्टेयर ज़मीन जो है उनने किसानों को वापस दिलवाई। लगभग उसी वक्त एक सुबह बंगाल में नक्सलबाड़ी नाम की जगह में कुछ लोगों ने मार्क्स
और माओ से प्रभावित होकर बंदूकें उठाई और जाके जमींदारों को गोली से मारना शुरू किया और ज़बरदस्ती उनकी अनाज और ज़मीन और सब कुछ छीन के किसानों को वापस करना शुरू किया। हमारे सामने ये दो मॉडल्स आए। पहले जो नक्सलवाड़ी का जो मॉडल था वो पहले ही शुरू में ही फेल हो गया, 3-4 दिन के अंदर ही फेल हो गया वो। लेकिन नक्सलिज्म आज भी जिंदा है, मॉइज्म आज भी जिंदा है। हर साल 15-20 हजार लोग मॉइज्म से आज भी मर रहे हैं। और कोई भी ऐसा किसान आपको अपनी जिंदगी में मिल जाए जो कहे हाँ नक्सल लोगों के कारण मेरी जमीन मुझे वापस मिली, तो आप प्लीज मुझे जरूर बताइएगा। और भूदान जो कि हमारा खुद का आइडिया था, विदेशी नहीं देशी आइडिया था, जिससे लाखों किसानों की जमीन वापस मिली, आज उसकी कहीं चर्चा नहीं, नामो निशान नहीं। ऐसा कैसे हुआ? क्योंकि हमें बताया ही नहीं गया। ये तो मेरी खुशकिस्मती थी, शायद मां सरस्वती का मेरे ऊपर कुछ आशीर्वाद रहा होगा, टीचर का बेटा हूं, कि एक दिन मैंने गलती से लिख दिया कि आज 2 अक्टूबर है, शास्त्री जी को मेरा नमन, और हजारों लोगों ने लिखना शुरू किया कि आप उनकी मृत्यु के ऊपर फिल्म क्यों नहीं बनाते हैं। एक्चुअली लोगों ने लिखा कि आप उनकी हत्या के ऊपर फिल्म क्यों नहीं बनाते हैं। मैं कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज में बिलीव ही नहीं करता हूं। तो मैंने रिसर्च करना चालू किया, 1-2 साल मैंने रिसर्च किया, बहुत सारी RTIs फाइल की गवर्नमेंट के पास, और उसके चलते शास्त्री जी का निधन कैसे हुआ था वो बात तो किनारे रह गई, पर जो चीजें निकल के सामने आने लगी इंडिया के बारे में, किस तरह से आज अगर आप मिडिल क्लास हैं, अगर आज कोई गरीब है, अगर आज कोई आर्थिक रूप से संघर्ष कर रहा है, तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि आपको आजादी के बाद लगातार लूटा गया है 3 तरीकों से। आपका पैसा, आपकी डिग्निटी और आपकी सेल्फ एस्टीम। और ये बिल्कुल एक विधिवत तरीके से हुई है ना, प्लान ऑर्गेनाइजर। मेरी फिल्म आएगी, आपको देखने को मिलेगा। बहुत चीजें बता नहीं सकते छोटे दायरे में, इसलिए मैं आपको बताता हूं। एक किताब है जिसका नाम है मित्रोकिन आर्काइव। KGB के 1991 में जब USSR टूटा तो KGB का जो डायरेक्टर था वसीली मित्रोकिन, शायद किसी ने नाम सुना हो, वो 25 साल तक KGB के डॉक्यूमेंट्स को इकट्ठा करता रहा और फाइनली 2 सूटकेसेस में भर के वो एक दिन ब्रिटिश एम्बेसी में पहुंचा जब USSR टूट गया। और उसने बताया कि किस तरह से KGB ने किन किन कंट्रीज में करप्शन करके कॉलोनाइज किया है, उसके दस्तावेज उनके पास लेके गया। उन डॉक्यूमेंट्स में के चलते यूके में मित्रोकिन कमीशन बना, जिसमें तमाम MPs और लोगों के खिलाफ केसेस चले, अंदर गए। उस इटली में बना, स्पेन में, उसमें एक बहुत बड़ा चैप्टर इंडिया के ऊपर है। और उसमें नामों के साथ लिखा है कि कब किसको कितने पैसे दिए गए, किस तरह करप्ट किया गया। उसमें फोटो है किस तरह से हमारे दिल्ली JNU यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स, किस तरह से हमारे थिंकर्स, हमारा मीडिया, हमारे पॉलिटिशियंस, हमारे इंटेलेक्चुअल्स, किस तरह से एवरीबडी वाज वर्किंग ऑन KGB पेरोल। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो 70 की हिस्ट्री को अगर याद हो तो आपको याद होगा, ये बीच में हल्की सी चर्चा चली थी, इस पे सवाल भी उठा था पार्लियामेंट में, पर उसको आज नामो निशान नहीं है। शास्त्री जी की जिस दिन डेथ हुई थी, इंडिया में एक भी सोवियत न्यूज़पेपर या मैगजीन नहीं थी। उनके मरने के 5-7 साल के अंदर अंदर हिंदुस्तान में 30,000 सोवियत पब्लिकेशंस थे। ऑलमोस्ट 70-80% पब्लिकेशंस, हितवाद और नवभारत नहीं, लेकिन जितने मेन स्ट्रीम न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स थे, मोस्टली ऑल ऑफ देम, उनके जितने एडिटर्स थे, सबके सब जो हैं KGB के पेरोल पे काम कर रहे हैं। हो सकता है ये गलत हो सकता है ये झूठ हो, लेकिन एज अ सिटीजन
क्या एक भारतीय को सत्य जानने का अधिकार है कि नहीं है? 70 साल की आजादी में कौन सा वो दिन था जब आपको एक भी सत्य जानने का अधिकार या हक मिला? इतने स्कैम हुए, इतने असैसिनेशन हुए, इतना सब कुछ हुआ, एक भी सत्य कभी आपके सामने आया? तो जब आपकी लीडरशिप अपने ही देश के सिटीजन्स को एक ऐसी आइडियोलॉजी में बांधना चाहती हो जो आइडियोलॉजी आपकी नहीं है, तो ये तो आपने सुना ही होगा कि ओढ़ा हुआ व्यक्तित्व अंततः हार ही जाता है। तो ये आइडिया ऑफ इंडिया का जो सर्वनाश है, ये इसकी शुरुआत है। जिस दिन आइडिया ऑफ भारत, जिस दिन एक हिंदी स्पीकिंग, मराठी स्पीकिंग, गुजराती स्पीकिंग, तमिल स्पीकिंग एक छोटे शहर का पोस्ट मास्टर का, एक ओवरसीयर का, एक बैंक मैनेजर का बेटा या बेटी, उसको हिंदुस्तान में उतनी प्रतिष्ठा, उतनी इज्जत मिलने लगेगी जितनी एक दिल्ली पब्लिक स्कूल या क्राइस्ट चर्च के लड़के लड़की को मिलती है, या लटियंस दिल्ली के एक किसी सशक्त रईस आदमी के बेटे को मिलती है। उसी दिन ये भारत आजाद होगा। हम आज भी एक विचारधारा के गुलाम हैं। जो लड़के या लड़कियां यहां से बाहर जाते हैं, वो सिर्फ इसलिए नहीं जाते कि उनको पैसे कमाने, ये हर कोई जानता है कि आज भारत की स्थिति भी इतनी अच्छी है कि बाहर से ज्यादा अच्छा यहाँ है। पर कौन रहेगा ऐसे जहां पे हर समय, देखिए आपको आज पढ़ लिख के बच्चा कहाँ जाएगा? दिल्ली, बेंगलोर, बंबई जाएगा। जैसे ही वो एक छोटे शहर का, अमरावती का या अकोला का लड़का यहाँ से जब जाएगा बाहर बेंगलोर या दिल्ली, उसको सबसे पहले अटैक किया जाएगा वो किस तरह के कपड़े पहनता है, वर्नाक्युलर है, उसका एक्सेंट क्यों ऐसा है। आदमी किसी भी चीज के साथ जी सकता है, पर एस्टीम के बिना नहीं जी सकता। और ये जो पूरी लड़ाई है चंद लोगों की, जो कई सारे लोग अब लड़ रहे हैं, आप लोग भी बैठे, ये अकेली नहीं है, ये हम सबकी है। वो है किस तरह से हम इस देश के सेल्फ एस्टीम को वापस लाएं। मैं आईआईटी में गया था, वहाँ प्रोफेसर, आईआईटी के जो प्रोफेसर थे, जब आईआईटी जो एग्ज़ाम होता है आईआईटी के लिए, उसमें जो लड़का टॉप करता है उसको असाइन किया जाता है आईआईटी पवई, आईआईटी बॉम्बे का जो आईटी डिपार्टमेंट है वहाँ पर। मेरी प्रोफेसर बापट से बात हो रही थी, वो वैदिक मैथमेटिक्स पे काफ़ी लेक्चर दिया करते थे। कहने मैं शुरू में दिया करता था इस पे काफ़ी लेक्चर, पर धीरे धीरे लोग मुझे कहने लगे कि तुम संघी हो, तुम भक्त हो, और मुझे हर समय नीचा दिखाने की कोशिश की जाने लगी। तो आजकल मैंने देना बंद कर दिया है। आज मुझे आश्चर्य की बात यह है, एक तरफ हम लोग ये बोलते हैं कि जो मार्शल आर्ट्स हैं दे आर वेरी गुड फॉर हेल्थ एंड लाइफ। इतनी एक प्राचीन संस्कृति को हम लाके अपने सेलिब्रेट करना चाहते हैं, और हमको आज़ादी से लेकर 2014 हो गए योगा को सेलिब्रेट करने में। भाई आप अपनी चाची, अपनी मौसी, अपने पड़ोसी, किसी और को आप सेलिब्रेट करिए, उसमें कोई बुराई नहीं है, पर अपनी मां को तो सेलिब्रेट करना मत भूल जाओ। तो ये जो एक पूरी भारत को लेके जो पूरी हीन भावना है, देखिए भारत क्या है? भारत राम भी है, भारत रावण भी है, ये मत भूलिए। वही भारत जहां पे पूरा लाइट जली हुई है, बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे हैं, BMW का एड छपा हुआ है, लिखा हुआ है हाउ टू स्पेंड 14 डेज इन स्पेन, और वहीं पे नीचे एक मर्सिडीज में लोग खड़े हुए, बंबई की बात बता रहा हूं, मैंने आंखों से, आप यहां भी दिख जाएगा, वहीं नीचे मर्सिडीज से लोग खड़े हुए रात को किसी चाट वाले से या चाय वाले से चाय पी रहे हैं, जिसका बच्चा दूर किनारे में एक गार्बेज के ढेर के पास एक कुत्ते या किसी जानवर के बच्चे के साथ एक रोटी के लिए लड़ाई लड़ रहा है। ये है हमारा हिंदुस्तान। ये जो डिस्पैरिटी है, इतनी डिस्पैरिटी पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं है। एक इंडिया चंद लोगों का था जो कि रोज माला माल हो रहे थे, जो विदेश घूम रहे थे, जो लोग सारी चीज, इस देश के सारे रिसोर्सेस, सारी संपत्ति, आज
आज अगर मैं आपसे पूछूं कौन कौन से पब्लिकेशन हाउसेज है इंडिया में, आप कहेंगे पेंगुइन, रैंडम हाउस, ये गीता प्रेस बंद हो गया। आप इंडियन पब्लिकेशंस बताइए, आप इंडियन मैगजीन्स बताइए, आप इंडियन प्रोडक्ट्स बताइए। बड़े गर्व की बात है कि आज विठोबा इंडस्ट्रीज 2018 में एक प्रोग्राम को स्पॉन्सर कर रहा है। क्या ये संभव था? तो ये जो नई उठती हुई आवाज है, जो एक भारत की तरफ जाने की जो यंग लड़के लड़कियां जो यहाँ पे है, कोई भी व्यक्ति, उनको मैं कहना चाहता हूँ, यू शुड बी वेरी प्राउड। हमारा फैमिली सिस्टम, हमारा सोशल स्ट्रक्चर, डाइवर्सिटी की बात लोग करते हैं। आप किसी से मिलेंगे, लोग कहेंगे अमेरिका में बहुत डाइवर्सिटी है, सारे विश्व के लोग रहते हैं, पर ऐसी डाइवर्सिटी किस काम की जहाँ कोई किसी से बात ही नहीं करता। ना अमेरिकन चाइनीज से करते हैं, ना चाइनीज जैपनीज से करते हैं, ना वो लोग कोरियन से करते हैं, ना कोरियन रशियन से करता है। ऐसे सबअर्बन्स में रहने का क्या फायदा है? पर कोई एक ऐसा दिन आपकी जिंदगी में गुजरा है आज तक जहां आप किसी क्रिश्चियन, मुस्लिम, बुद्धिस्ट, ऊपर नीचे, गरीब अमीर से बिना इंटरेक्ट करे हुए अपना काम चला सकते हो? क्या ये संभव है? अपनी स्ट्रेंथ को समझिए, उस मां को सेलिब्रेट करिए, उस पिता को सेलिब्रेट करिए जिसने ये वैल्यू सिस्टम वर्ल्ड में भेजा है। आज 10 या 20 लाख अगर अमेरिका में है, वो कम तादाद नहीं है। लोग मुड़ के देखते हैं उन लोगों की तरफ। एक अलग तरह का रेवोल्यूशन जो है वो इंडियन माइंड्स ला रहे हैं। किस चीज की कमी है? कमी सिर्फ ये है कि हमको उनको एक एस्टीम, सेल्फ एस्टीम देना है। गरीबी से हम जूझ लेंगे, अनएम्प्लॉयमेंट से भी जूझा जा सकता है, लेकिन टूटी हुई रीढ़ की हड्डी से जूझना बहुत मुश्किल है। एक हारे हुए इंसान को जगाना बहुत मुश्किल है। गरीब को रईस बनाया जा सकता है, पर हारे हुए आदमी को खड़ा करना बहुत मुश्किल है। इसलिए मेरा जो आइडिया ऑफ भारत है, यहां पे कोई भी जो इनोवेशन की कोई एज नहीं होती, मेरा जो आइडिया ऑफ भारत है वो ये है, जिसको आज विश्व में इनोवेशन बोला जाता है, जिसको हम बोलते हैं जुगाड़। अब तो किसी गाड़ी खराब हो जाती है, विश्व में आप जाइए कहीं पे भी, परेशान हो जाते हैं, क्या करें, कैसे करें। लोग फ़ोन लगाते हैं, घर में नल खराब हो जाए, समझ में नहीं आता है। मैं किसी का रुका हुआ था अमेरिका में, तो उनके घर में उन्होंने दूध रखा और दूध पूरा उबल गया, तो काफ़ी धुआं हुआ, फैल गया, और वो फैल गया। एंड अमेरिकन हाउसवाइफ थी, एंड शी डिडंट नो व्हाट टू डू, शी इमीडिएटली कॉल्ड पुलिस। यानी तो अपढ़ से अपढ़ व्यक्ति ऐसा नहीं करेगा। तो ये जो नेटिव इंटेलिजेंस है, इस नेटिव इंटेलिजेंस की चर्चा हर समय होनी चाहिए। छोटे से छोटे जुगाड़ जो हम करते हैं, करप्शन वाले नहीं, टेक्निकल जुगाड़ जो हम करते हैं, उनको सेलिब्रेट करना चाहिए। हम लोगों को अपनी ज्वाइंट फैमिली सिस्टम को सेलिब्रेट करना चाहिए। हम आज भी जो अपने कजिन्स को हमारा भाई करके इंट्रोड्यूस करते हैं, उसको हमें सेलिब्रेट करना चाहिए। हमको, मुझे बहुत अच्छा लगा आपने मुझे तुलसी दी, मैं सोच भी नहीं सकता था कभी कोई तुलसी दे। और यही पेड़ आप खरीदने जाएंगे तो मेरे ख्याल से आपको $25-30 का मिलेगा ये पौधा। तो क्यों नहीं हम हमारी जो चीजें हैं, हमारी जो कलाएं हैं, उसको यंग लड़के लड़कियां उसको रिनोवेट करके, उसको पैकेजिंग करके। आज सोशल मीडिया में तो हम लोग वर्ल्ड में नंबर 1 होते जा रहे हैं धीरे धीरे, राइट? इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग अनएम्प्लॉयड हैं। किसी ने बोला था इंडियन नंबर 1 बन रहे हैं बिकॉज उनके पास काम ही नहीं कर, ऐसा नहीं है। जितना काम आज इंडियन हाउसवाइफ करती है, वर्ल्ड की कोई औरत करके बता दे, मैं उसके पांव धो के पी लूंगा। इन्वेंटरी मैनेजर, हॉस्पिटैलिटी मैनेजर, HRD मैनेजर, वैल्यू स्किल डेवलपमेंट मैनेजर, वैल्यू एडिशन। आप यानी जो एक कॉर्पोरेट में जितने भी डिपार्टमेंट, फाइनेंस मैनेजर, और तो और बाकी कॉर्पोरेट तो लीडर्स कंट्रोल करते हैं,
शी ऑल्सो ट्रेन्स लीडर्स हाउ टू लीड। सारे मर्द जानते होंगे इस बात। तो ये जो मैं हमेशा बोलता हूँ, परसों मैंने एक आर्टिकल भी लिखा था विमेंस डे पे, इंडियन विमेन को, इंडियन हाउसवाइफ को खास तौर पे एक बहुत जबरदस्त लेवल पे एज अ मूवमेंट सेलिब्रेट करने की आवश्यकता है। आप करके तो देखिए, आप चलिए, एक बहुत चीजें हम लोग करते हैं, लोग कहते हैं जी पेट खराब है जी ये खा लो, खा लेते हैं ना, पूछते नहीं है। कोई कहता है अरे भैया बच्चे का ये नहीं हो रहा, उस मंदिर चले जाते हैं कि नहीं चले जाते हैं। अगर आपको वाकई में भारत से प्यार है, अगर आप वाकई आपके अंदर कहीं एक ऐसी इच्छा है कि मेरा देश भी आगे बढ़े, आप एक हफ्ते के लिए एक चीज ट्राई करके देखिए। जो एक हाउसवाइफ है, उसके जो अचीवमेंट्स हैं उसके बारे में अगले 7 दिन तक लोगों को बताइए जहां आप काम करते हैं, अपने बच्चों को बताइए, पड़ोसियों को बताइए, और आप देखिए कि आपके घर के अंदर ही अपने आप बिना कुछ किए हुए से बात करने से कैसे माहौल बदल जाता है। क्योंकि आइडिया ऑफ इंडिया पूरे हिंदुस्तान ने एक साथ डिसाइड नहीं किया था, ये सिर्फ एक घर में ये बातचीत शुरू हुई थी। बातचीत अगर चलती रहे तो एक घर से निकलकर 70 साल तक पूरे देश पर राज किया जा सकता है। तो क्या कारण है कि आपके घर से अगर हिंदुस्तानी हाउसवाइफ को, हमारी हेरिटेज को, हमारी जो क्वालिटीज़ हैं उनको अगर हम सेलिब्रेट करना शुरू कर दें गर्व के साथ, और बॉलीवुड के गाने मर जाए ना बजाएं, तो कोई कारण नहीं है कि आइडिया ऑफ भारत सार्थक नहीं हो सकता। तो मेरी खास तौर पे यंग लोगों से इसलिए कहता हूँ, 40 साल के बाद आदमी बेचारा इसी आपाधापी में रहता है कि रिटायरमेंट की क्या सेविंग करूँ, उठता हूँ तो जोड़ों में दर्द होता है 50 साल के बाद। इसलिए मैं यंग लोगों से कहता हूँ, बिलीव इन इनोवेशन। अगले जो 10-15 साल हैं सिर्फ उन लोगों के हैं जिनके पास आइडियाज हैं, और आइडियाज के लिए पैसे की जरूरत नहीं पड़ती है। आइडियाज तभी पनपते जब पैसे कम होते हैं। हिंदुस्तान की गरीबी को यूज करो, जो जुगाड़ करने का तरीका है उसके बारे में सोचो। और आज जो इतनी बड़ी दीज आर द लकीस्ट टाइम्स ऑफ आवर लाइफ कि आज आपको उसके लिए सोशल मीडिया मिल गया है, आपको मार्केटिंग में उसको पब्लिसाइज करने के लिए कोई पैसे की आवश्यकता नहीं। आज जो बातचीत यहाँ हो रही है, अगर अभी आप उसको FB लाइव पे लगा दें तो हजारों लोग तक पहुंचेगी, वो और आगे लगा दे तो औरों तक पहुंचेगी। मैं मान ही नहीं सकता कि आपके पास कोई आइडिया ना हो ही नहीं सकता। ऐसा कोई व्यक्ति ऐसा विश्व में पैदा ही नहीं हो सकता जिसके पास आइडिया ना हो। आप याद करिए अपने बचपन को, क्योंकि आपके बाल सबसे ज्यादा सफेद है इसलिए आपसे कह रहा हूँ। अपने बचपन को याद करिए, जब आप 3-4 साल के थे, आपके माँ बाप आपको जंगल में छोड़ दें, शॉपिंग मॉल में छोड़ दें, अंधेरे में छोड़ दें, सड़क पे छोड़ दें, 2-4 मिनट रोने के बाद 5 मिनट के अंदर आप एक नया गेम इजाद कर लिया करते थे अकेले। वो क्रिएटिविटी मरी नहीं है, वो कहीं एक दिमाग के तहखाने में या वो मुल्ला नसरुद्दीन की तरह से कहीं अंधेरे में पड़ी है। एक बार जाइए तो अंधेरे में अपने उस क्रिएटिव बच्चे को निकालिए, जो गिफ्ट, सबसे बड़ी गिफ्ट हमें मिली हुई है। और उस क्रिएटिविटी को किस तरह से इंडियननेस के साथ जोड़ा जा सकता है, अपनी वैल्यूज़ के साथ जोड़ा जा सकता है, उसको करने की कोशिश करिए। एक ऐसा इकोसिस्टम, एनवायरनमेंट क्रिएट करिए, भले ही वो 10 लोग का हो, और आप देखिए कैसे धीरे धीरे हम लोग वापस, मैं भी लास्ट बात आपको बताना चाहता हूँ, गर्व की बात है। मैं 6-7 दिन पहले उज़्बेकिस्तान में था, ताशकंद है जहाँ शास्त्री जी का निधन हुआ था। 1 किलोमीटर के घेरे में वहाँ पे शास्त्री मेडिकल कॉलेज है, शास्त्री स्कूल है जहाँ हिंदी में पढ़ाते हैं, उनकी मूर्ति लगी है, शास्त्री चौक है, शास्त्री स्ट्रीट है। 1 किलोमीटर में जितना हमने उनको सेलिब्रेट किया है उतना हमने इस देश में 50 साल में कभी नहीं किया। पर सबसे मज़े की बात वहाँ पे ये है कि तैमूर लंग का नाम आपने सुना होगा। वहाँ लिखा हुआ है, तैमूर लंग के मकबरे पे मैं गया था, वहाँ पे लिखा हुआ है कि तैमूर लंग ने बहुत देशों पे आक्रमण किए, कई लोगों को हराया, और उसके दिल में एक ही इच्छा थी,
वो कहता था कि मैं तब तक एम्परर नहीं बन सकता जब तक मैं विश्व के सबसे रईस देश को न बर्बाद न को लूट के न ले आऊं, और जिसका नाम था दिल्ली। और तब वो यहां आया और उसने दिल्ली को लूटा, एक रात में 1 लाख लोगों को मारा, और लौटते हुए सारी खेत खलियान फसल गांव के गांव सब चौपट ध्वस्त करता हुआ वापस गया, यहां से जम्मू पंजाब हरियाणा होते हुए। उसके बाद इंडिया कभी उभर नहीं पाया। फिर मुगल आ गए, फिर ब्रिटिश आ गए, और आज़ादी के बाद मार्क्स और लेनिन आ गए। मेरी उनसे कोई व्यक्तिगत मार्क्स लेनिन से प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तो अगर हम सबसे रईस देश नहीं, तो मैं नहीं कह रहा हूं, ये कोई सरकार भी नहीं कह रही है, ये कोई IIT के वैदिक प्रोफेसर भी नहीं कह रहे, ये तो तैमूर लंग के वहां लिखा हुआ है कि विश्व के सबसे रईस देश। जब तक दिल्ली पे कब्जा नहीं किया जाएगा तब तक आप एम्परर हो ही नहीं सकते। क्या कारण है? आज वही दिल्ली दुनिया का सबसे करप्ट सिटी बन चुका है। इससे लड़ना होगा, और ये दायित्व आपका है, हम सबका है, और खास तौर पे जो एनीबडी हु इज अबव 40 उन लोगों का है कि जितने 10 साल से लेकर 17 साल के जितने लोग हैं, उन लोगों को प्लीज, मैं खुद बॉलीवुड में हूं, पर उनको थोड़ा सा कभी कभी घर में अपने हिंदुस्तानी संगीत भी बजाइए। कभी तो कोशिश करिए, फोन है, फोन पे बज सकता है, कभी तो उन्हें थोड़ा लिटरेचर पढ़ाइए, नहीं पर किताबें तो रख दीजिए। कुछ नहीं हो तो खरीदने का बहाने किताब की दुकान पे ले जाइए, देखेंगे तो कम से कम इंडियन ऑथर्स कौन कौन है। ये कोशिश करना बहुत जरूरी है। मैं ये ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, मैंने अपने बेटे बेटी दोनों इतने विदेशी होते जा रहे थे, पिछले 3, 4, 5 साल से हम लोगों ने डेलिबरेटली करना कोशिश किया। अब हम नहीं सुनते उनकी बातें कि हम नहीं जाएंगे, ये होगा वो होगा, हम ये सब नहीं सुनते। हम कहते हैं देखो ये हमारी पारिवारिक व्यवस्था ये हो गई, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। मेरे बच्चे नहीं, हम ब्रेकफास्ट में ये नहीं खाएंगे, मैंने कहा देखो मेरी माँ रख दी, ये पराठा यही खाना पड़ेगा, यही बना है। तो इस तरह से यू हैव टू कंपल्सिवली यू हैव टू डू दैट। और आप देखिए धीरे धीरे ये आइडिया ऑफ भारत सार्थक होने लगा। दैट्स ऑल आई हैव टू से। थैंक्स फॉर बीइंग पेशेंट। थोड़ा मेरा गला बहुत ख़राब है, इसलिए मैं बहुत अच्छे से बोल नहीं पा रहा हूँ, पर आपको अगर कोई टाइम हो और सवाल हो तो आई एम रेडी टू आंसर। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सो मच विवेक जी। वो मैं बताने वाली थी कि विवेक जी वॉज अबाउट टू कैंसिल द प्लान क्योंकि उनकी तबीयत खराब थी, लेकिन वी आर वेरी ग्लैड दैट यू केम हियर, यू हैड अ वेरी नाइस सेशन विद अस। क्योंकि वो क्रिएटिव माइंड्स की बात कर रहे थे तो मुझे आपके एक टॉक की याद आई वेयर यू वेर इन IIT एंड यू आस्क्ड द स्टूडेंट्स हाउ मेनी ऑफ यू आर क्रिएटिव हियर, nobody raised hand, a few, and then you asked how many are human beings, and then everybody was like okay I am. So we doubt our creativity, and that is where I think today's session would be very helpful to you all. So क्योंकि I'll take the advantage कि मैं आज conduct कर रही हूँ, तो we'll begin our interactive session, and first and last question I'll ask you so that I get the benefit of being here. So the first question I would like to ask is, when and why Buddha in a traffic jam? When was the time you thought that I would love to create such a socio-political drama, and why? देखिए, मैं जब कॉलेज में पढ़ता था, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में हम लोग गए, तो धीरे धीरे हम लोग बसें जलाने लगे, विधानसभा में पत्थर फेंकने लगे, जेल जाने लगे, ये सब करने लगे, और हिंदुस्तान की जो भी चीज़ थी उससे नफरत करने लगे। वही कालिदास जिसको पढ़ पढ़ के पढ़े हुए थे, लगा रहे ये क्या जानते हैं, शेक्सपियर पढ़ा जाए। तो मेरे दिमाग में एक विचार ये उठा कि कोई हिंदुस्तान में कोई सी ऐसी फैमिली नहीं हो सकती है जो अपने बच्चों से कहे कि भाई स्कूल के बाद कॉलेज में जाके ये करो। तो क्या कारण है कि कॉलेज में आते ही साथ हम लोग भारत की बर्बादी, भारत के टुकड़े होने, इन सब बातें करने कहाँ से सीखते हैं लड़के लड़की। देन आई सेड कहीं पे बहुत आज की जो लड़ाई है ये बंदूकों से नहीं लड़ी जाएगी,
इस लड़ाई के जो आर्म्स और एम्युनिशन है वो होंगे यंग लोगों के दिमाग। अगर आप सिस्टमैटिक तरीके से उनको ब्रेन वॉश करते जाए तो धीरे धीरे हर कोई बंदूक और गन्स उठा ही लेगा। जिस तरह से छोटे छोटे 5 से 7 साल बच्चों का वॉश करके उनको जिहादी और सुसाइड बॉम्बर बनाया जाता है, एग्जैक्टली उसी तरीके से बहुत सारी यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में जो टैलेंटेड और क्रिएटिव लड़के लड़कियां होते हैं उनको ब्रेन वॉश करके उनको एक तरह का फ्रंट बना दिया जाता है, एक मूवमेंट का जो पूरे देश में चल रहा है जिसमें हजारों लोग मरते रहते हैं। तो आई सेड कि टुडे इफ यू आर अ बुद्धा, बुद्धा से यहाँ पे कोई रिलीजियस रीजन नहीं, बुद्धा मतलब आइडिया, बुद्धा मतलब जो क्रिएटिव माइंड है, जो जिसके पास आइडिया है। अगर आपके पास एक क्रिएटिव माइंड है तो यू विल फाइंड योरसेल्फ स्टक इन अ ट्रैफिक जैम ऑफ द सिस्टम। सो दैट वाज द आइडिया। तो ये जो नेक्सस है एक इंटेलेक्चुअल्स, मीडिया, एनजीओज और एकेडमिया का और नेक्सलिज्म का, ये जो पूरा जो एक नेक्सस है जिसको आज तक कोई देखता नहीं था। इसमें मैंने फिल्म बनाई, लेकिन प्रॉब्लम ये था जब फिल्म बनाई सबने कहा ये फिल्म कैसे बना सकते हैं, ऐसा तो होता ही नहीं है, ये फिल्म रिलीज भी नहीं करेंगे। जो बेचारों ने कुछ पैसा लगाया था वो भी छोड़ के भाग गए। बॉलीवुड आप जानते हैं कैसे चलता है, मैं उसके बारे में बोलना भी नहीं चाहता हूँ। सबने मना कर दिया, पर माँ सरस्वती की कृपा थी कि जो फिल्म मैंने 2012 में बनाई थी, 4 साल से बंद पड़ी थी, 2016 में शब्द बाई शब्द सार्थक हो गई। जेएनयू में भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह के नारे लगने लगे। लोगों ने कहा हाँ ये बात तो सही है, और इस तरह से वो बात सामने आई। डीन ऑफ सिनेमा स्टडीज ने भी शायद रिफ्यूज कर दिया था स्क्रीन करने से। जी हाँ।